Welcome all of you. This is again Dr. Abhijit Singh Jadeja, Kadishwar Vishwavidyalaya, Gandhinagar, Bhulabhai Patel College of Computer Studies, BCA. Today we are discussing about BCA 501, that is subject is web development using ASP.NET, and today's topic is text box and button in ASP.NET. As you can see in this picture, this is the text box. You can find it out so many times. The text box, we can enter the data entry, and this is a graphical image for a button where we can submit the button, save the events, and so many things. So let's get started. In the next slide, the topic beneficiaries are Bachelor of Engineering, Computer Engineering, Information Technology Diploma students, BSc IT student, BCA, PGDC, MC, and MSc IT students. As we know that one, the prerequisites for this topic is .NET Framework or VB.NET you should learn, object-oriented programming, basic concept you must know about it, and for .NET Framework you know about Solution Explorer, Toolbox, Property Window, and yes, finally when we run the program we use F5, that is called CLR, Common Language Runtime. For VB.NET also we press F5, and ASP.NET also we press F5. Console application, in our previous video series you learned that how to develop the console application with C#. We completed that practical concept also. First, how to start ASP.NET project. As you can see that one, Visual Studio 2010, when I open, I go to the file, and into the file when I go to the new, into this new, there is a website, that is the second option. The shortcut is Shift Alt N. When I click on new website, after that how to develop the website, how to create the website, that is left side template where my mouse is moving, Visual C# you select. Then after first ASP.NET website, that is useful for template where master page is there, some default templates are there. The second option is very important for us because we are taking standard tools primary level, so ASP.NET empty websites are there. After selecting this ASP.NET empty website, we go to the browse button, where browse button we can create the project in your hard disk wherever the location. In this video you can see that one when my cursor is moving in F drive, ASP Division E website 1. So before we going to the practical, this is the main properties and methods are there. First method we will focus, that is dot focus. This method is activate the cursor at specific tool. Property text mode. This is very important property, single line. Multi-line, it is more than one line for address data entry and all. And the last line important is password. When we use the password, we use for a password masking, that this GIF images are there. When we enter that password, that particular dotted is there, and it is validating also. When I enter the first password, that is password, that spelling was wrong, it was not accepted, and when the spelling is right, it is accepted. So text mode property is very important. That property is read only property, and in this read only property by default value is false. And when I select the true, that true text box can make it change like that. You cannot edit, update or delete any data. That is read only property. Then after we discuss about the tooltip property, and in this tooltip property, whatever the instruction we want to edit, that instruction can be displayed when mouse is over. The next property is very important, that is max length. You can see into the bottom of this text max length property. It decides the number of characters that you allow to enter. In this particular graphical things, you can clearly see that one. आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि टेक्स्ट मैक्स लेंथ में पहले बहुत सारे कैरेक्टर एंटर होते थे. जब मैक्स लेंथ इक्वल टू 10 किया गया तो सिर्फ 10 कैरेक्टर अलाउ किया गया. जब मैक्स लेंथ 6 पे क्लिक किया गया, जो नीचे ग्राफिकल इमेज आपके सामने है वीडियो बेस, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट में बहुत सारे कैरेक्टर्स अलाउ किए गए. 10 में सिर्फ 10 कैरेक्टर अलाउ किए गए, और 6 में 6 कैरेक्टर अलाउ किए गए.
देन आफ्टर रोज एंड कॉलम्स प्रॉपर्टी वी आर टेकिंग, ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी हम बाद में ले लेते हैं। रोज जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर जब मल्टी लाइन के अंदर कितनी रोज रखनी है, बहुत बार टेक्स्ट बॉक्स आपने देखा है जिसमें आप एड्रेस एंट्री करते हैं, तब एंट्री में 4 या 5 लाइन लिखने के बाद ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार आ जाता है। तो वो स्क्रॉल बार कैसे आता है वो आ जाएगा। कॉलम्स में इफ वी वांट टू सेट द विड्थ ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स एज पर कैरेक्टर्स, मीन्स जब वो एड्रेस की एंट्री आप करेंगे तब आपकी मल्टी लाइन के अंदर विड्थ क्या रहेगी। यदि आप 2 लिखेंगे तो सिर्फ 2 कैरेक्टर का टेक्स्ट बॉक्स मल्टी लाइन बन जाएगा। वो हम लोग अभी प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी टेक्स्ट बॉक्स में, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में, लिस्ट बॉक्स में, रेडियो बटन में, चेक बॉक्स में, हर जगह पे यूज होती है। ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी को ASP.NET का हार्ट कहा गया है क्योंकि यह डायनेमिक इवेंट को रिस्पॉन्स देती है। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है और जब हम उसको ट्रू करेंगे तब वो डायनेमिक इवेंट को रिस्पॉन्स दे रही है। उसको हम लोग अभी अभी देखेंगे। रिस्पॉन्स डॉट राइट ये एक प्रकार का आउटपुट स्टेटमेंट है। जब हम लोग वेब पेज में कुछ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वेब पेज का पार्ट बनवाना चाहते हैं, तब रिस्पॉन्स डॉट राइट यूज होता है। और एक बहुत अच्छी सी चीज़ जो हमारे लिए खास है, जैसे हम सी लैंग्वेज में यूजर डिफाइंड फंक्शन लेते थे, वैसे ही कस्टमाइज यूजर डिफाइंड इवेंट रेफरेंस ऑफ OOP, मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम वाइज इवेंट को भी प्रैक्टिकली देखा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, लेट इट इज़ अ टाइम फॉर प्रैक्टिकल एक्सप्लोर कॉन्सेप्ट। विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे C# का आइकॉन गया है, यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन सब आइकॉन गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट मी मूव टू द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। आई हैव ऑलरेडी ओपन दैट विजुअल स्टूडियो, फाइल, न्यू वेबसाइट। When I click on file, new website, C#, empty website is there, ASP division E, and if I want to change, I just click on browse. I can go to anywhere of my hard disk. Look, you can see that one, C drive, D drive, E drive. In a F drive, I am going for a ASP practical. In ASP practical, I am creating one more project, that is Xbox example. So my project is available now in F drive of my hard disk. ASP practical is a folder. Into that one more subfolder is there, that is Textbox example. When I click on OK, the empty website is on my screen. There is no web page. So let me start with right click on my project name, because you can see that one in my hard disk F drive, ASP practical, Textbox example. Add new item. In add new item, if we select web form, this is an empty web page, that extension is .aspx. If we select master web page, when we develop a huge website where web templates, web themes, web menus and all themes are same, we want to change some dynamic concept. At that time we will use web master page. So master page extension is .master. So whenever we use web user control, ADO.NET database connectivity will be there. We will focus on AJAX controls and AJAX tools are also there. So now in a simple web form, the extension is ASPX, delete, and I am using text box example. When I click and add on it, this web page is there. As you know that one, this is a design view of my web page. This is a source view of my web page, and I'm starting the tools of Xbox. First of all, we are focused on standard tool only. These are the tools of ASP.NET. In this standard, I'm using Textbox, drag and drop. Then after I press enter 2 times. You can see that in a source, आप देख सकते हैं सोर्स में मैंने जो टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया उसका टैग अपने आप बन गया है। 2 बार जो मैंने एंटर लगाया उसका 2 बार BR अपने आप आ गया। BR मीन्स ब्रेक टैग। और अब मैं यहाँ पे एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं बटन टैग आया और बटन के अंदर
जो बटन लिखा है उसकी जगह पे मैं लिखूंगा CHECK चेक। और जब मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊंगा तो आपने देखा कि बटन मैंने ड्रॉप किया था सोर्स व्यू में, वो बटन फिजिकल आ गया है। टेक्स्ट बॉक्स जो मैंने ड्रॉप किया था डिज़ाइन व्यू में उसका सोर्स अपने आप आ गया। ये सब काम जो कर रहा है वो web.config नाम की फाइल है। अब सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे। डिज़ाइन व्यू, उसी के बाजू में सोर्स व्यू रहता है जो कि टैग को मैनेज करता है, और इस बटन की क्लिक इवेंट पे, ये हमारी क्लिक इवेंट है। इस क्लिक इवेंट को प्रोटेक्टेड वॉइड बटन 1 क्लिक इवेंट कहा जाता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिस्पॉन्स, ये मेरा मेन क्लास है। रिस्पॉन्स डॉट राइट, कंसोल एप्लीकेशन में राइट और राइट लाइन दोनों था, ये इसमें सिर्फ राइट आएगा। ब्रैकेट चालू बंद, सेमीकोलन करना ना भूले। वेलकम, फिर स्पेस दिया मैंने, प्लस करके टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट मीन्स मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी डालूंगा वो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट के द्वारा डिस्प्ले होगा। ये मेरा इवेंट व्यू है या कोड व्यू है जिसका एक्सटेंशन CS होता है। डिज़ाइन व्यू का कोई एक्सटेंशन नहीं होता क्योंकि वेब पेज ऑलरेडी ASPX होता है। प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ, जब मैं प्रोजेक्ट रन करता हूँ तब आपको मालूम है ये वार्निंग आई है कि आपका प्रोजेक्ट ब्राउज़र में रन हो रहा है। जब मैंने क्लिक किया तो आप ब्राउज़र के अंदर जाएंगे, और जब आप ब्राउज़र में जाएंगे तो आप देख सकते हैं ब्राउज़र लोड हो रहा है, और ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स और ये मेरा चेक बॉक्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉक्टर अभिजीत सिंह जडेजा, और जब मैंने क्लिक किया तो ऊपर आप देख सकते हैं वेलकम डॉक्टर अभिजीत सिंह जडेजा। ये मेरा आउटपुट आया है। इस आउटपुट को छोटा करके हम कोड व्यू के अंदर जाके आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमने कोड किया है वो बिल्कुल छोटा सा है, एक लाइन में ही है, और रिस्पॉन्स डॉट राइट में जो लिखा गया है वेलकम, और उसके बाद जो अभी आप नाम लिखेंगे वो नाम यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। आई एम चेंजिंग माई नेम विथ युगवीर सिंह जडेजा, और जब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी क्लिक इवेंट में वेलकम युगवीर सिंह जडेजा, तो प्रोटेक्टेड वॉइड बटन 1 की क्लिक इवेंट हुई, जिसके अंदर हमने वेब पेज के अंदर ही ये चीज़ को समझा कि जो भी डेटा डाला वो वेब ब्राउज़र के अंदर एक पार्ट बन जाता है। और आगे मैसेज बॉक्स का एक एग्जांपल आप सेट करेंगे। प्रोजेक्ट को स्टॉप रन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जो जाना चाहूँगा डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा। बटन है, बटन के सोर्स व्यू में आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है, वो ये है कि बटन की 1 रन एट सर्वर टेक्स्ट चेंज ऑन क्लिक में बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक है। इसको कस्टमाइज इवेंट यूजर डिफाइन इवेंट बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जडेजा, और जब मैंने ऑन क्लिक जडेजा लिया है तो मैं यहाँ क्लिक इवेंट में जाके जो बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक वहाँ लिखा था ऑन क्लिक पे, यहाँ पे भी मुझे जडेजा, ये मैंने यूजर डिफाइन इवेंट बनाई है। मैंने प्रोग्राम अगेन रन कर दिया है। मैं एंटर कर रहा हूँ BPCCS, और जब मैंने क्लिक किया वेलकम BPCCS, इस कोड को भी आप समझ सकते हैं कि अब जो इवेंट आई है वो बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक नहीं है, ये कस्टमाइज यूजर डिफाइंड इवेंट को रन किया गया। इसी तरह से आप हर एक इवेंट को, जैसे ऑन क्लिक होता है, एक्सचेंज इवेंट होता है, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये ASP.NET का फ़ायदा है, ये VB.NET के अंदर नहीं होता था, क्योंकि VB.NET के अंदर प्राइवेट सब था और एंड सब था। यहाँ पे जो हो रहा है वो प्रोटेक्टेड वॉइड जडेजा है, मतलब कि वॉइड नाम जहाँ पे भी आता है C++ में आज समझ सकते हैं ये क्लास कहा जाता है। वॉइड मीन वो मेन क्लास था, और उसके बाद जब आपने इनहेरिटेंस किया था तब मल्टीपल क्लास को आप इनहेरिट कर सकते थे। ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने लिया। अभी टेक्स्ट बॉक्स की सम प्रॉपर्टीज़, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमने थ्योरी में डिस्कस की है वही डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स में ले रहा हूँ, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ ABHIJEET अभिजीत, और रीड ऑनली प्रॉपर्टी को
मैं ट्रू कर रहा हूँ। मैं जो भी चेंज करूँगा वो बोल्ड हो जाएगा। और एक बार अगेन आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ दो प्रॉपर्टी को यूज़ किया है टेक्स्ट में, अभिजीत और रीड ओनली ट्रू। जब मैं अगेन प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ तब आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर अभिजीत पे क्लिक करने के बाद आई कैन नॉट बैकस्पेस इट, दूसरा आई कैन नॉट डिलीट दिस थिंग। सो रीड ओनली प्रॉपर्टी है वो इस तरह से काम करती है कि इसके अंदर रीड ओनली प्रॉपर्टी में एडिटेबल नहीं है। ओके फाइन, तो ये हमने देखा टेक्स्ट प्रॉपर्टी में अभिजीत लिखा है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। रीड ओनली जो लिखा है ट्रू उसको मैं अगेन फॉल्स कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी हमने समझ ली है। अब मेन प्रॉपर्टी जो मैंने बोला था टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी, 2010 के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है बट हमारे लिए सिंगल लाइन जो हमने देखी, मल्टी लाइन। जैसे ही मल्टी लाइन की यहाँ स्क्रॉल बार आ गया, इसके साथ हम लोग रोज देख लेते हैं। रोज के अंदर जब मैं 5 करता हूँ तब इसके अंदर 5 रो आ चुकी है। प्रोजेक्ट को स्टॉप करूँगा, एक बार फिर से रन करूँगा और आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स है वो मल्टी लाइन में कन्वर्ट हो चुका है, ए बी सी डी ई। और जब मैंने एफ डाला तब स्क्रॉल बार अपने आप आ गया है, मतलब कि 5 रो ए बी सी डी ई। एफ जैसे ही एंटर किया ये 6th रो है, एफ एंटर, जी एच आई, ये सब अपने आप आता है क्योंकि रोज के अंदर 5 डिफॉल्ट रो हमने रखी है। अब इसी के साथ हम लोग कॉलम्स को फिक्स कर देते हैं। यदि मैं कॉलम्स के अंदर यहाँ पे 4 करता हूँ और प्रोजेक्ट को एक बार स्टॉप करके फिर से रन करना चाहूँगा तो आप अब टेक्स्ट बॉक्स जो हमने मल्टी लाइन कर दिया है उसका लुक देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ हमने 5 किया तो आप समझ सकते हैं कि ए बी सी डी ई आया है, एफ जी एच आई जे के ये नेक्स्ट कैरेक्टर में आ रहा है क्योंकि हमने उसकी विड्थ है वो फिक्स कर दी है, और विड्थ मतलब कॉलम्स। तो ये भी बहुत सुंदर सी प्रॉपर्टी है, बहुत आसान समझ में आ जाए ऐसी प्रॉपर्टी है कि कॉलम्स को 4 लिया तो 0 1 2 3 4, इसलिए उसने 4 कैरेक्टर को अलाउ किया, और सॉरी उसने 5 कैरेक्टर को अलाउ किया हमारे साथ। हम इसको जब 0 कर देते हैं तब आप समझ सकते हैं कि वो बाय डिफॉल्ट एज इट इज विड्थ ले लेता है। ओके, अब यही टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग टेक्स्ट मोड में जाएंगे। टेक्स्ट मोड में जाके पासवर्ड यूज करेंगे। ये अब रो की जरूरत नहीं है इसलिए मैं रो को डिलीट करके जो 0 था वैसे ही कर रहा हूँ। और जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तब आप देख सकते हैं कि पासवर्ड, और पासवर्ड के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है ABHIJEET अभिजीत, जो पासवर्ड फॉर्म में है। मास्किंग आता है, ये 2010 के अंदर ये मास्किंग डी मास्किंग की आइज है, उस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तब अभिजीत दिखा और फिर अगेन डी मास्क हो गया, मास्क हो गया, डी मास्क हो गया। सो पासवर्ड कैर नाम की प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी। अगेन बाकी जो है वो बहुत ही सिंपल है कि कलर करना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, डेट का फॉर्मेट देना है। बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिलते हैं जिसमें स्लैश अपने आप आता है। यू जस्ट नीड टू एंटर ओनली डेट और टाइम लेना है, ईमेल को वैलिडेट करना है, मंथ को। बट जनरली सिंगल लाइन, मल्टी लाइन और पासवर्ड ज़्यादातर यूज होते हैं। सो ये हमने लिया टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। अब जो प्रॉपर्टी है वो हमने पावर पॉइंट में जिस तरह से देखा था वैसे टेक्स्ट बॉक्स को एक बार अगेन यूज करेंगे। और अब जो प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग आगे जा रहे हैं वो है मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी। मैक्स लेंथ में जाके मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ और उसके साथ टूल टिप नाम की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। और टूल टिप में हम लोग एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एंटर मैक्स 5 कैरेक्टर्स ओनली। आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। हम एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। जब मेरा कर्सर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जाएगा तो आप देख सकते हैं एंटर 5 कैरेक्टर्स ओनली, ये इंस्ट्रक्शन आया। टूल टिप का फ़ायदा ये है, जब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं एंटर कर रहा हूँ ABHIJEET, मैं प्रेस कर रहा हूँ अभिजीत, ये लिखने की कोशिश कर रहा हूँ बट उसने ABHIJ ही लिया है क्योंकि 5 कैरेक्टर हो गए ABHIJ।
5 कैरेक्टर्स की लेंथ सेट हुई। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मानी जाती है। बहुत सारी जगह पे गूगल में जब आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं तब उसमें आपने देखा है कि 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। तो ये सब चीज़ जहाँ से मैनेज हो रही है वो है मैक्स लेंथ। सो मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी को मैं रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे और टूल टिप की भी अब ज़रूरत नहीं है। टूल टिप है वो एक इंस्ट्रक्शन लेवल पे ही है। सो आई रिमूव इट। ओके, ये हमने जो देखा है वो टेक्स्ट बॉक्स की जो भी मेन प्रॉपर्टी है वो हमने देखी। अब हम लोग एक और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, क्योंकि अभी हमको ऑटो पोस्ट बैक नाम की एक प्रॉपर्टी जो है वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो देखनी है। तो टेक्स्ट बॉक्स को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है। आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी विंडो में भी टेक्स्ट बॉक्स 2 आया है। यहाँ पे एंटर किया, फिर एक और बटन लिया और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने क्लिक लिख दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जो एक शाइनिंग सिंबल है जिसको हम लोग इवेंट्स कहते हैं, वहाँ पे जाते ही हमको ये इंडिकेट हो रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स की बाय डिफॉल्ट इवेंट टेक्स्ट चेंज इवेंट है। तो चलिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक कर देते हैं। जब हमने टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक किया एक इवेंट बन गई। उस इवेंट का नाम है टेक्स्ट बॉक्स 2 अंडरस्कोर टेक्स्ट चेंज। मैं लिखना चाहूँगा रिस्पॉन्स डॉट राइट, सेमीकोलन ना बोले, डबल इन्वर्टेड कॉमा ना बोले, यू एंटर। फिर टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, क्योंकि आप जो डेटा चाहिए मुझे वो टू में से चाहिए, शो बाय टेक्स्ट चेंज्ड। और ये टेक्स्ट चेंज में लिखा है, मैं रन कर रहा हूँ प्रोग्राम और टेक्स्ट बॉक्स 2 जो है वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ KSV। मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एक्चुअली टेक्स्ट चेंज में तुरंत रिस्पॉन्स मिलना चाहिए बट नहीं मिल रहा है। बट जब मैं बटन 2 पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं योर एंटर्ड KSV शो बाय टेक्स्ट चेंज इवेंट। मीन्स टेक्स्ट चेंज इवेंट चलनी चाहिए टेक्स्ट बॉक्स 2 से, बट जब मैंने बटन क्लिक किया तभी वो चली। सो हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, योर की जगह पे यू करेंगे और आप लोगों को अब अच्छी तरह से ध्यान देना है और समझना है। मैं डिज़ाइन व्यू में गया, यहाँ टेक्स्ट चेंज इवेंट बराबर है। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्लिक करके जब मैं प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ, यहाँ A to Z वाले सिंबल में सबसे ऊपर प्रॉपर्टी होती है ऑटो पोस्ट बैक। ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी जैसे मैंने बोला बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है, बट मैंने जब ट्रू किया और अब मैंने प्रोग्राम रन किया, अब प्रोग्राम रन करने के बाद मैंने KSV गांधीनगर लिखा और मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ। मैंने बटन पे अभी क्लिक नहीं किया है, आप मेरा कर्सर देख रहे हैं। मैंने बाहर जैसे ही क्लिक किया, आप ऊपर देखो यू एंटर KSV गांधीनगर शो बाय टेक्स्ट चेंज इवेंट। नॉट ओनली दिस, मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ और मैं मिस्टर युगवीर, और जब मैं टैब लगा रहा हूँ, मेरा कर्सर तो यहाँ है, जब मैं टैब लगा रहा हूँ तो आप डायनेमिक रिस्पॉन्स देख रहे हैं। जब मैंने टैब लगाया तभी भी ऊपर यू एंटर मिस्टर युगवीर। अभी मैंने बटन तो क्लिक किया ही नहीं। तो जब भी आपको लॉस्ट फोकस इवेंट जैसी चीज करनी है टेक्स्ट बॉक्स के साथ, तो आपको सिर्फ टेक्स्ट चेंज इवेंट लेनी है और ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी ट्रू कर देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ भावेश, और जब मैं टैब लगा रहा हूँ, आप देख रहे हैं मेरा कर्सर है वो तो ऊपर ब्राउजर की टाइटल में है। जब मैं टैब लगा रहा हूँ, आप देखें मैंने बटन तो क्लिक किया ही नहीं, यू एंटर भावेश शोन बाय टेक्स्ट चेंज इवेंट। सो दिस इज अप टू दिस। मैं टेक्स्ट बॉक्स 2 को सिलेक्ट करके सोर्स में जा रहा हूँ और यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट पे टेक्स्ट चेंज है, उसकी जगह पे मैं ले रहा हूँ ABHI अभी। इस इवेंट को भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। पहले था टेक्स्ट बॉक्स 2 चेंज,
अभी ऑन टेक्स्ट चेंज अभी है तो मुझे उसके कोड व्यू में जाके भी टेक्स्ट बॉक्स 2 की टेक्स्ट इवेंट चेंज इवेंट है वहाँ मुझे लिखना पड़ेगा ABHI अभी। इतना कस्टमाइज यूजर इवेंट या यूजर फ्रेंडली इवेंट जनरेशन पार्ट है, वो आगे जाके आपको जावा में भी काम लगने वाला है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में भी काम लगने वाला है। सो आई एंटर अ न्यू नेम किंजल। मेरा कर्सर बाहर है या मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए आप, मैंने बाहर क्लिक किया, यू एंटर किंजल शो बाय टेक्स्ट चेंज इवेंट। तो आई थिंक अब आपको जो भी चीज़ आज हमने डिस्कस करी या टेक्स्ट बॉक्स और बटन के साथ हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया वो समझ में आ गया है। दूसरा, जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ करी है, फिर वो बटन की क्लिक इवेंट हो या टेक्स्ट चेंज इवेंट हो, मैंने यूज़ किया है response.write जो कि एक आउटपुट स्टेटमेंट है। कंसोल एप्लीकेशन में अगले वीडियो सीरीज में हमने देखा था console.write एंड राइट लाइन, यहाँ पे है response.write। टेक्स्ट चेंज इवेंट में भी मैंने response.write यूज़ किया है और इस तरह से मैंने मेरे डेटा को यूज़ किया है, मैंने मैनेज किया है। अभी फिर से हम लोग वापस आएंगे हमारे मेन कॉन्सेप्ट में। प्रैक्टिकल आप लोगों ने देख लिया, बहुत आसान था टेक्स्ट बॉक्स को समझना। अभी टाइम है सेल्फ लर्निंग असाइनमेंट का या सेल्फ लर्निंग असेसमेंट में। और सेल्फ लर्निंग असेसमेंट में आपके लिए असाइनमेंट के क्वेश्चन है, गिव स्टेप्स हाउ टू स्टार्ट ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट, वो ऑलरेडी इस वीडियो में है। गिव स्टेप्स हाउ टू ऐड वेब पेज इन वेब पेज, इसका मतलब है .aspx इन ASP.NET, वो भी मैंने डेमोस्ट्रेट करके बताया। Yes, what is the use of focus method in ASP.NET, वो हम लोग अभी कर लेते हैं। हम लोग फिर से इवेंट में आए हैं, यहाँ पे जाएंगे और पेज लोड इवेंट जो हमारी खाली थी उस पर डबल क्लिक करके हम लोग यहाँ आए। और आप उससे पहले देख ले कि मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ ASP.NET के अंदर, वेब पेज के अंदर, दोनों टेक्स्ट बॉक्स में से कहीं पे भी कर्सर ब्लिंक नहीं हो रहा है, कर्सर एक्टिवेट नहीं है। इसलिए लोड इवेंट में मैं लिखना चाहूँगा टेक्स्ट बॉक्स 1.focus ब्रैकेट चालू बंद और सेमीकोलन करना ना भूले। ये फोकस इवेंट है जो मैंने लोड इवेंट में लिखी है, इसको मैं रन कर रहा हूँ। जब मैं रन करूँगा तब आप सिनारियो देखें, टेक्स्ट बॉक्स 1 है वो बोल्ड हो चुका है और कर्सर मेरी वेट कर रहा है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ MCA और जब बटन पे क्लिक करूंगा तो आपको मालूम है वेलकम MCA जो response.write से आया है। बट देखने की बात यह है कि जब मैंने फोकस इवेंट या फोकस मेथड यूज किया तब कर्सर मेरा वहाँ ब्लिंक हुआ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 की जगह पे टेक्स्ट बॉक्स 2 कर देता हूँ और इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, तो आप समझ सकते हैं मेरा कर्सर बोल्ड होके टेक्स्ट बॉक्स 2 में आ रहा है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ INDIA इंडिया और मैं सिर्फ टैब लगा रहा हूँ। मैं माउस से बाहर क्लिक करूँ तो हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया, बट मैं जब टैब लगा रहा हूँ आई प्रेस टैब, आप देखें ऊपर मैसेज आ गया है, डायनेमिक रिस्पॉन्स मिला है, यू एंटर इंडिया शो बाय टेक्स्ट चेंज इवेंट। तो हम लोग फिर से अपने असाइनमेंट में वापस आते हैं। आपने देखा .focus मेथड इन ASP.NET, व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी फॉर टेक्स्ट बॉक्स, एक्सप्लेन 3 ऑप्शन, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन एंड पासवर्ड कैर। मल्टी लाइन में हमने रोज एंड कॉलम्स के ऑप्शन भी देख लिए। What is the use of max length property for text box? Give example। बहुत सुंदर सा प्रॉपर्टी है ये। 5 कैरेक्टर कर दिए तो 5 के बाद आपको एक भी कैरेक्टर एक्स्ट्रा एंटर करने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हमने एक साथ देखना है, वो है टूल टिप, रोज, कॉलम्स एंड रीड ओनली प्रॉपर्टी। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, बहुत काम की है। जब यूजर को बाउंड करना हो, कोई एंट्री नहीं करने देनी है तो रीड ओनली। रोज और कॉलम्स मैक्स आप लोग जब मल्टी लाइन यूज करेंगे तब होगा। टूल टिप हमने देखा, जब माउस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आएगा तो इंस्ट्रक्शन निकलेगा। यदि एग्जाम और डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट वाले 2 टॉपिक जो आपको असाइनमेंट में दे रहा हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिएट वेब पेज दैट एंटर यूजर नेम एंड इन टेक्स्ट बॉक्स एंड डिस्प्ले इट ऑन द बटन्स क्लिक इवेंट। response.write से किस तरह से वेलकम करके हमने लिखा वो। हाउ कैन वी कस्टमाइज एनी इवेंट इन ASP.NET, गिव सूटेबल एग्जाम्पल। आज हमने जाडेजा नाम की इवेंट बनाई जो कि बटन की क्लिक इवेंट थी। बाद में मैंने अभी नाम की इवेंट बनाई जो टेक्स्ट चेंज इवेंट थी, जो यही वीडियो में है।
thank you so much to watch this video. Thank you so much for get the knowledge. Please like this video. If you have any doubt, any queries, questions about text box and button, kindly ask into the comment. यदि आपके फ्रेंड्स आपके ग्रुप में कोई यदि इंजीनियरिंग में, BCA में, PGDCA में है तो काइंडली शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस बेल आइकन ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए. अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक्स अ लॉट. सेफ, stay home, stay safe, stay beautiful. Thank you so much all.